Hello, hello, my dear little students. See, I want to show you the plants. See here, this is a plant, and this is also a plant. You can differentiate. This is a plant which has small leaves. We can see the growth of this plant is not well developed. And see, this is a plant of the same variety. uh, See, it's very beautiful, very healthy. Why this is so healthy and this is not so healthy? I want to show you the difference in between the growth of these plants. This is a pot in which this plant is grown up. This plant has the natural soil. Even I don't put any artificial nutrients or organic nutrients from the nursery to mix with this soil, but this plant seems very healthy. And see, I want to show you. You can see a hole. This is a, you can see, this is a hole under the pot from which plants extra water can be drained away. And this is a planter, a pot in which, see, it has no hole. It has no hole, means no extra water can be drained away from this pot. See the difference in the soil. This soil has minimum of the soil and most of the fertilizers, and this soil is without fertilizer, only the natural soil. So we can see the growth. This plant is dull, underdeveloped. This is a beautiful, well grown up. It is outside my house. It is in the garden of my house, and it was inside. Although it was near the window on which it can gain proper sunlight, but why it is undernourished? Because the main material, soil, which supply all the natural supplements to the plants to make the food for itself and for all of us. Plants make food for us, and they also supply oxygen to us. In the process of photosynthesis, under the leaves, there are small pores which we cannot see. From these pores, which are called stomata, we cannot see them from the naked eye, but if we can place the outer side of the leaf, this side, below a microscope, we can see the pores from which exchange of gases takes place. The carbon dioxide, which is the foul gas, which is not good for us, we cannot breathe in the presence of carbon dioxide. Our body need only oxygen, and oxygen we get from the plants. But you can see, today my topic is why the growth of these plant is different. And we can also see the growth of these plants depends upon the environment in which it is placed. It should be in the natural environment. Where it was placed, it was not natural, it was inside the room. It has a good amount of sunlight, but natural environment was missing.
it is in the natural environment, it is not getting any direct sunlight, but it is able it to absorb the natural nutrients which are needed for the growth of a plant. I can explain you in हिंदी. ये प्लांट हमारे घर के अंदर रखा हुआ था मैंने विंडो के पास. फ़र्क क्या था इस और इस प्लांट में? इसकी जो सॉइल है उसमें सॉइल कम है, फर्टिलाइज़र ज़्यादा है, यानी कि खाद ज़्यादा है. और इसके वाले में सॉइल ज़्यादा है पर मैंने इसमें फर्टिलाइज़र मिक्स ही नहीं किया. नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो इस प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए थे, जिसे हम बोलते हैं एयर. इसके पास प्लेंटी ऑफ एयर थी जिसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और फोटोसिंथेसिस में ये गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बनाता है और अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके सनलाइट की प्रेजेंस में सॉइल एंड वाटर से, वाटर इन दोनों प्लांट्स में बराबर था. हम इनको भी 4-5 डेज़ बाद थोड़ा सा वाटर देते थे क्योंकि इनसाइड दी रूम्स हमें ज़्यादा वाटर, प्लांट को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं होता, यानी कि पौधे से, पत्तों से पानी इवेपोरेट नहीं होता. पानी के इवेपोरेशन को जो लीव से होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. जैसे हमारी बॉडी में हमें स्वेट आता है, पसीना आता है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उससे बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपर होती है. और इसमें क्योंकि आउटसाइड था, इसमें ट्रांसपिरेशन भी हो रहा था. ट्रांसपिरेशन होने से क्या होता है कि इसकी रूट्स प्लांट्स में से पानी को प्रॉपर वे में ऊपर खींच पाती हैं. ट्रांसपिरेशन एक पुल होती है जो खींचती है वाटर को ऊपर की तरफ. यहाँ ट्रांसपिरेशन ही नहीं है तो वो पुल भी कम थी. तो प्लांट को जो जो इंग्रेडिएंट्स, जो जो एनवायरनमेंट चाहिए था, एयर चाहिए था, गुड अमाउंट ऑफ सॉइल चाहिए था, नेचुरल एयर चाहिए था, जो मिसिंग थी इसके लिए, इस प्लांट के लिए सब कुछ अवेलेबल था. तो इसकी ग्रोथ देखो. तो इस प्लांट लाइफ से हम क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं, ये लेसन हमें मिल रहा है कि हमें भी, हमारी बॉडी के लिए भी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, घर से बाहर निकलना, बट नॉट इन द शार्प सनलाइट, मतलब तेज़ सनलाइट में हमें नहीं बाहर निकलना. मॉर्निंग आवर्स और इवनिंग आवर्स में बाहर निकलना, उससे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर होती है. जैसे प्लांट्स को अपना नेचुरल एनवायरनमेंट मिल रहा है, ऐसे हमारी बॉडी को भी नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए. हमें ओनली न्यूट्रिएंट्स, मतलब इन विटामिन एंड वो नहीं चाहिए. हम सप्लीमेंट्स लेते हैं मार्केट से कि हम हेल्दी हो जाएं. हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो बचपन से हमारे पेरेंट्स हमारी डाइट फिक्स करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. सिर्फ सप्लीमेंट्स जो आर्टिफिशियल हमारे सोर्सेज हैं, कि हम कहें कि ओनली सप्लीमेंट्स लेते हैं, उससे हम सर्वाइव करते हैं इस प्लांट की तरह. ये प्लांट सर्वाइव कर रहा है बट इट्स नॉट हेल्दी. ये प्लांट देखो सर्वाइव कर रहा है, इट्स हेल्दी, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल प्रोसेसेस, ट्रांसपिरेशन का, इसमें क्या कहते हैं, गुड अमाउंट ऑफ सॉइल, गुड अमाउंट ऑफ वाटर. पॉट के नीचे एक होल था जो एक्स्ट्रा वाटर को ड्रेन आउट करता था. तो इसको सारी चीज़ें मिली हैं, तो इसलिए एक हेल्दी प्लांट है. इसके पास सारी चीज़ें नहीं थी, इट्स नॉट एन हेल्दी प्लांट. तो हमें भी अपने पेरेंट्स का कहना मान के, वो हमारे लिए जो गुड डाइट डिसाइड करते हैं, फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, रोटी, चपाती, डोसा, सांभर, राइस, दाल, जो जो पेरेंट्स बोलते हैं हमें लेना चाहिए. गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हमें मिल्क में, कर्ड में, पनीर में, सब में मिलता है, तो हमें वो भी ज़रूर लेना चाहिए. क्योंकि हमारे और प्लांट लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट नेचुरल फिनोमिना कि हमें नेचुरल चीज़ें जो चाहिए, हमें बॉडी में स्वेट भी आना चाहिए, हमें थोड़ा एक्सरसाइज करनी चाहिए, योग करना चाहिए अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल और कंफर्टेबल रखने के लिए, ताकि हम ओल्ड एज में यंग रह सकें. ओल्ड एज में यंग रहना मतलब अपनी ओल्ड एज को डिले कर सकें. हम बेड पे ना, जल्दी से जल्दी बेड पे ना पड़ के बीमार होएं और हमें लोगों की, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेनी पड़े. कहते हैं कि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड हमेशा रहता है. जो बॉडी हेल्दी होती है वो हेल्दी वे में सोचती भी है. ए हेल्दी माइंड ऑलवेज लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी. तो हमें अपने पेरेंट्स का कहना मान के एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए. सुबह टाइम पे उठना चाहिए. हमारे बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस जो हमें पता भी नहीं है, इस यूनिवर्स के लॉज से चलते हैं. और यूनिवर्स के लॉज क्या हैं कि सूर्य, जो सन है, अपने टाइम पे
राइज़ होता है, अपने टाइम पे छुपता है। जितने टाइम में वो रहता है उतने टाइम में हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेसेस है वो चलते हैं। आज हमारी न्यू जनरेशन क्या कर रही है, वो दोपहर को सो के उठते हैं और मिडनाइट तक जागते रहते हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तो हमारी गॉड की तरफ से जो सेट है बॉडी में, वो है मॉर्निंग टू नाइट 8 o'clock 9 o'clock। उसके बाद हमारी बॉडी की क्लीनिंग प्रोसेस और बॉडी को जो जो चीज़ें चाहिए होती है वो हो रही होती हैं, और हम क्या कर रहे होते हैं उस टाइम में, बॉडी को इंटरफेयर कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा खाना उसमें डाल के सब कुछ करके। तो हमें अपनी बॉडी को डिसिप्लिन रखना है, नहीं तो हमारा हाल इस प्लांट की तरह हो जाएगा। हम बहुत जल्दी ओल्ड हो जाएंगे, हमारी डेवलपमेंट पुअर होगी हमारे, बिकॉज ऑफ कि हमें जो हम नेचर के दिए हुए लॉज को फॉलो नहीं कर रहे। और ये प्लांट देखो कितना ब्यूटीफुल। अगर हम इस प्लांट की तरह ब्यूटीफुल रहना चाहते हैं तो हमें नेचर के जो लॉज बने हैं, सूर्य चांद तारे, यानी कि ये सारे हमें सब कुछ सिखा रहे हैं कि हमें लाइफ में कैसे रहना है। सूर्य राइज़ करता है तो मीन्स हमारे उठने का टाइम है, गेट अप फ्रॉम द बेड। और जब छुप रहा है तो मीन्स हमें अपनी सारी एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन करना है, और फिर हमें अपनी फैमिली लाइफ की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने फैमिली की तरफ वो टाइम देना, और गॉड को याद करके। गॉड कौन है? वो सुपर नेचुरल पावर जो इन सब के अंदर है, प्लांट्स में, हम सब में, जो हमें चला रही है। बट अगर हम गॉड के बनाए हुए रूल्स, यानी कि नेचर के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम बहुत 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 हेल्दी रहते हैं और बहुत हैप्पी रहते हैं। देखो इसकी लीव्स मुझे कितनी हैप्पी दिख रही हैं, क्योंकि ये प्लांट्स हेल्दी है इसलिए हैप्पी है। ये प्लांट देखो इसकी लीफ कैसे सूख रही हैं, बड़ी हुई नहीं। ये हैप्पी कैसे हो सकती है? क्योंकि वो हेल्दी नहीं है। और हेल्थ कहाँ है? हमें रूल्स को फॉलो करने में, नेचर के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करने में हम हेल्दी हैं। हमें बहुत एक्सेस टेस्टी चीज़ों को अपनी बॉडी में हर टाइम नहीं डालना चाहिए, उससे हमारी हेल्थ डिस्ट्रॉय होती है। देखो इस प्लांट में हमने आर्टिफिशियल चीज़ें भी बहुत सारी जो हमने जो सॉइल में सिर्फ फर्टिलाइज़र्स हैं, ओनली फर्टिलाइज़र। खाली फर्टिलाइज़र्स के साथ बेस होना बहुत ज़रूरी था, जिसमें बेस मीन सॉइल, जिससे प्लांट हेल्दी ग्रो होता। हमारी बॉडी में हम लोग आजकल क्या करते हैं, खाना तो खाते ही नहीं है, प्रोटीन पाउडर मार्केट से बने हुए वो पी लेते हैं, और चाय कॉफ़ी इन सब से अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। लाइफ जो जिस वे में हमें अपने आप को बड़ा करना चाहिए वो नहीं कर रहे। हेल्दी लाइफस्टाइल को डेवलप करना चाहिए। बच्चों, जो चीज़ें हमारी बॉडी को, हमें पता होता है क्या लेकर हम हेल्दी रह रहे हैं और क्या लेकर हम हेल्दी नहीं रह रहे, तो हमें उस लाइफस्टाइल को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमें कॉन्टीन्यूसली अलार्म करते हैं, बताते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, बट हम लोग सुनते नहीं। हम सोचते हैं हम दुनिया के सबसे समझदार लोग हैं, और हम प्लांट्स देखो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। उनको हमने जिस पॉट में रख दिया उनको वैसे ही रहना पड़ रहा है, ये देखो। पर हमारे पेरेंट्स तो हमें टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं। तो हमें, अगर हम इस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो उस एनवायरनमेंट को हमें इस एनवायरनमेंट में चेंज करना चाहिए। नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमारी बॉडीज़ को चाहिए, तो वो आप सबको पता ही है। टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी रहना, लड़ाई नहीं करना, प्यार से रहना, हैप्पी रहना, क्योंकि ये गॉड के बने हुए रूल्स हैं। तो अपने आप को हमेशा अच्छा बना के रखो, गुड ह्यूमन बीइंग बन के, तो हम ऑलवेज़ अप्रिशिएट होंगे। देखो इन दोनों प्लांट में, इस प्लांट को हम अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि इसको सारा कुछ मिला। इस प्लांट को नहीं मिलेंगे, चाहे इसको सब कुछ मिला, बट वो इसके नेचुरल हैबिटेट नहीं था, नेचुरल इसकी रहने की कंडीशंस नहीं थी जिसमें मैंने इस प्लांट को रखा है। तो अब मैं इसका प्लांटर बदलूँगी, एक ऐसे प्लांटर में डालूँगी, उसमें सॉइल डालूँगी, उसमें नीचे छेद वाला होगा ताकि एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट हो सके। तो देखना थोड़े दिन में ये प्लांट कितने हेल्दी उसमें चेंज हो जाएगा। तो हमें भी अपने लाइफस्टाइल को बदलना चाहिए टू बिकम हेल्दी। हमें बीमार नहीं पड़ना चाहिए।
कुछ चीज़ें तो हम अपने साथ लेकर आते हैं अपनी बॉडी के साथ, फिर भी हमें उन प्रॉब्लम्स को लेके फ़ाइट करना चाहिए और बीमार कभी नहीं पड़ना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हम हेल्दी रहें। जितने हम हेल्दी होंगे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हम सर्वाइव करेंगे। देखो कोरोना वगैरह से भी हम तभी फ़ाइट कर सकते हैं अगर हम हेल्दी हों। सिर्फ वैक्सीनेशन हमारी हेल्प नहीं कर सकती हैं। हमें ओनली वैक्सीनेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन, हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ द सोल्यूशन। हमें अपनी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इम्यूनिटी क्या है? फाइटिंग सेल्स, अपनी बॉडी की जो हमारी फाइटिंग सेल्स हैं, जो हमारे जर्म से फाइट करती हैं, वो तभी ग्रो होंगी अगर हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल रहेंगे, और कोरोना को हम मार भगाएंगे अपने गुड लाइफस्टाइल से। हमें ऐसा वीक नहीं बनना, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। लेट्स फाइट विद कोरोना with healthy lifestyle.